Hello friends, welcome to Surrender English classes. Today my topic is adjective and we talk about adjective. Okay, now let's start with the definitions of adjective. First of all, an adjective that qualifies noun or pronoun, that is called adjective, which qualifies noun or pronoun. For example, we can say that she is beautiful. Kinds of adjective. Now we talk about the kinds of adjective, and there are the 10 kinds of adjective. And the first is adjective of quality, and second is adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, verb is possessive adjective, distributive adjective, interrogative adjective, proper adjective, and emphasizing adjective and exclamatory adjective. Okay, there are the 10 kinds of adjective. Okay, now we talk about every kinds of adjective. Okay, now first we start with the adjective of quality. It shows the quality of a person or okay. After the adjective of number, now next is demonstrative adjective. It is used to point out some persons or things. Okay, for example, these, that, these, those, these are the example of demonstrative adjective, because it always qualifies the and point out the persons or things. For example, this man will guide you. Okay, here this is demonstrative adjective, because this is particularly this. Okay, this, that, these, and those, that point out the persons that done anything or any work, just that is defined by the point out. It means the demonstrative just point out to any persons or things, that is called the demonstrative adjective. Okay, next is possessive adjective. It means it shows possessions or relations. When some adjective shows the relation, that is called the possessive adjective. Okay, possessive, that means belongs to us, belongs to me. Okay, for example, my, our, your, his, her, its. Okay, this is all the examples of the possessive adjective, because it shows the own or relations to relations, or it shows the relations or belongs to something, us, something to us and belongs to us. Okay, that for example, my, okay, this is my pen. Okay, it means this pen belongs to me. Okay, so my shows the possessions or relations. Okay, that's why this is called the possessive adjective. Next, distributive adjective. Okay, each, every, either, and neither are called the distributive adjective. Okay, distribute. For example, each boy had a pen. Each boy. Okay, here is a distributive adjective which qualifies the distribute to anything. Okay, every man has his own duty. Okay, here is an every distributive adjective. After distributive adjective, now next is interrogative adjective. Okay, all the WH words, an example, what, which, and whose, WH words are called interrogative sentence. Let's ask a questions, that is called the interrogative adjective. For examples, whose book is this? Where ask the questions, whose book? Okay, that's why this is interrogative adjective. Now next is proper adjective. Adjectives are made from the proper nouns are called the proper adjective. Okay, when proper comes. Okay, for example, Indian farmers are honest. Okay, here Indian is a proper noun, because that qualifies a particular person. That's why this is called the proper adjective. Now next is emphasizing adjective. On, very same, etc. are such adjective as are used to emphasize. Okay, used to emphasize. Okay, sir, means force, to force emphasize or to force on the noun that follow them are called emphasizing adjective. Okay, I saw them, for example, I saw them with my own eyes. Here on eyes, on emphasizing adjective, because after emphasizing adjective, now last one is exclamatory adjective. Okay,
What is called an exclamatory adjective when it is used as an exclamatory sentence? Okay, for an example, what an idea, okay, with exclamation marks is called the exclamatory adjective. Okay, now I'm going to explain you in Hindi. Okay, एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण कहते हैं. ओके, एडजेक्टिव जो है क्वालिफाइज करता है नाउन और प्रोनाउन को. इसका मतलब हिंदी में कह सकते हैं जब कोई संज्ञा और स्वनाम की विशेषता बताए. ऐसे कोई भी शब्द जो संज्ञा और स्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया गया उदाहरण के रूप में सी इज़ ब्यूटीफुल. सी इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पे वह खूबसूरत है. तो यहाँ खूबसूरत है तो कौन खूबसूरत है? वह खूबसूरत है. ये खूबसूरती जो है, ये खूबसूरत जो है वो किसको क्वालिफाइज कर रहा है? वह को क्वालिफाइज कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल हो गया वो उसके एडजेक्टिव हो गए. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल्स आई हैव रेड पेन्स. तो मेरे पास कौन से पेन है? तो रेड पेन्स है. तो रेड जो है वो एडजेक्टिव हो गया. आई हैव ए ग्रीन पेन्स, आई हैव ए ग्रीन पेन्स, योर ग्रीन इज एडजेक्टिव. ओके, अब हम लोग उसको काइंड्स के बारे में देखते हैं. तो एडजेक्टिव के जो काइंड्स है वो अपने देख ही चुका है, आपने देख ही लिए हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी है, नंबर्स है, एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर, एम्फेसाइजिंग और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है. ओके, तो हम लोग पहले देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़, इसमें क्या होता है? हमें किसी भी चीज़ के एडजेक्टिव की जिससे हमें गुण का बोध हो. इट शोज़ द क्वालिटी ऑफ पर्सन. मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जिससे हमें गुण का बोध हो वो कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिससे हमें गुण का बोध हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख लेते हैं मोहन इज़ ए गुड बॉय. मोहन एक अच्छा लड़का है. तो यहाँ पे जो अच्छा है वही लड़के की विशेषता बता रहे कि वो लड़का जो मोहन जो है वो एक अच्छा लड़का है. तो यहाँ गुड जो है, अच्छा जो वो हो गया, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है, इसलिए इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इज दिस पेन इज़ ब्लैक. दिस पेन इज़ ब्लैक. ओके, मतलब यह पेन जो है वो काला है. यहाँ ब्लैक जो है वो पेन की विशेषता बता रहा है कि वो पेन जो है वो ब्लैक है. ओके, अब हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की विशेषता क्या हो जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से हमें किसी भी चीज़ों की, हमें उसकी मात्रा का बोध होता है. ठीक है, उसके क्वांटिटी का बोध होता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ. उसने अपना सारा धन जो है वो खो चुका है, सारा. यहाँ पे उसकी मात्रा का बोध है कितना. अगर वो कुछ धन खोया होता तो सम का यूज़ कर लेते हैं. लिटिल बिट अगर खोया होता कुछ थोड़ा सा तो लिटिल का यूज़ कर सकते थे. लेकिन उसने अपना सारा धन खो चुका है जिसकी वजह से हमने ऑल का, तो ऑल जो है उसकी क्वांटिटी को दर्शाया जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, कि उसने अपना सारा धन खो चुका है, इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि उसकी क्वांटिटी को दर्शा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिससे नंबर का बोध हो. ठीक है, एडजेक्टिव नंबर से हाउ मेनी पर्सन्स होते हैं, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हमें पता चलता है. ये संख्या के बारे में पता चलता है कि वो कितने हैं, कुछ हैं या फिर नहीं हैं, या थोड़े हैं, या फर्स्ट एक हैं, दो हैं, या बहुत हैं. तो इन सब से हमें उनकी संख्या का बोध पता चलता है, जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही हैड फ्यू हॉर्सेस. उसके पास कुछ घोड़े हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से क्या होता है कि संकेतवाचक, जिससे हम किसी भी व्यक्ति या चीज़ों को हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं या सूचित कर सकते हैं जिन शब्दों को यूज़ करके, उससे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस मैन विल गाइड यू. हेयर हम दिस का यूज़ जो कर रहे हैं, दिस मतलब या मैन, पर्टिकुलर या मैन जो, या आदमी जो है वो हमें गाइड या आपको गाइड करेगा. तो यहाँ पे हम लोग या वर्ड से या दिस वर्ड से हम लोग उस व्यक्ति को सूचित करते हैं कि यही वो आदमी है जो आपको गाइड करेगा. ठीक है, दैट हो गया, वो, ये, दोज, वे, ये सारे जो हैं वो सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो कि किसी संकेत, किसी भी व्यक्ति को सूचित करते हैं. ठीक है, या वस्तु को सूचित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हम देखते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव. पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट शोज़ द पोसेशंस और रिलेशन, जिससे यह जो एडजेक्टिव होता है इससे हमें अधिकार का या अपनेपन का बोध होता है. ठीक है, या किसी संबंध का बोध होता है. जैसे हम देख सकते हैं माई, आवर, योर, हीज और हर, इन सब चीज़ों से किसी न किसी चीज़ के अधिकार, अपने बारे में या अपनी किसी चीज़ से रिलेशंस का या फिर उसके ऊपर अधिकार का बोध होता है, उसे हम लोग
पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देख लेते हैं हम उदाहरण के तौर पे, दिस इज़ माई पेन। ओके, मतलब यह मेरा पेन है, या मेरा पेन है, यहाँ पे मेरा जो है वो उस पेन के ऊपर अपने अधिकार को सूचित किया जा रहा है कि यह मेरा ही पेन है। ठीक है, यहाँ पे उसके संबंध का भी पता चल रहा है कि पेन से उसका उस व्यक्ति का संबंध है या उसी का पेन है। ठीक है, तो ये सारे हो गए पॉसेसिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होगा, एच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जब इसे नाउन की तरह यूज़ होता है। तो ईच बॉय हैड ए पेन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास या प्रत्येक लड़के के पास जो है उनके पास पेन था। एंड एवरी मैन हैज़ इज ऑन ड्यूटी, प्रत्येक व्यक्ति, जितने व्यक्ति होते हैं उनके सभी का अपने अपने काम होते हैं। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से हमें किसी भी प्रश्न का बोध होता है। ठीक है, जैसे वाट, वेज, वाट, वेज एंड होज, WH वर्ड्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स वाट, वेज, होज, जितने भी WH वर्ड्स होते हैं जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है, वो सारे वर्ड जो होते हैं वो प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, होज बुक इज़ दिस, मतलब यह किसका किताब है। जिससे किसी क्वेश्चन या प्रश्न का बोध होगा उसे हम लोग प्रश्नवाचक विशेषण कह सकते हैं। ओके, क्वेश्चन। अब दूसरा हम देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव से क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव मेड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन, जब किसी पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन को लेकर एडजेक्टिव में उसे यूज़ किया जाता है जब प्रॉपर नाउन की तरह, तो हमें उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट, यहाँ पे इंडियन को एज ए प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह, प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट में यहाँ पे इंडियन जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह और यूज़ किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या हो गया, ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम, ये जितने भी सारे हैं वो सब एडजेक्टिव हैं। इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं या उसके किसी बात को कि फोकस कराने के लिए ज़्यादा उस पर बल दिया जाता है, उन सबको हम लोग एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया एग्जांपल, आई सॉ देम विथ माय ओन आइज़, क्या मतलब मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है, मीन्स अपनी आँखों से वो बार बार रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, उस बात पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है या बल दिया जाता है, एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मैंने देखा है उसे। कैसे देखा, तो अपनी आँखों से देखा, किसी और के आगे अपनी आँखों से देखा है। ये किसी की बातों पे नहीं, बल्कि वो अपनी बात को ज़्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से हम इसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। And the last one is exclamatory adjective. And what is called an exclamatory adjective? Okay, what is called and is when it is called in exclamative सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें ऐसे ही पता है, क्योंकि हमें सडन एक्सप्रेशन जो भी होते हैं वो सब सारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट इन इंडिया, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितना अच्छा सीन है या कितना अच्छा नज़ारा है, कुछ भी, ये सारे जो होते हैं वो सब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये था पूरी तरह से विशेषण का मैंने आपको आज डिफाइन किया, उसके काइंड्स और उसकी परिभाषाएँ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।